Hello, good morning student. Last time we have learnt about property of the solid state. Now today we are learning the liquid state. Here is activity 1.10. So we are understanding this activity. Collect the following like water, cooking oil, milk, juice and a cold drink. So liquid हमको ये लेने हैं. Then containers of different shapes, put a 50 ml mark on these containers and using a measuring cylinder from the laboratory. तो लेबोरेटरी से हमको मेजरिंग सिलेंडर लेके सबके ऊपर हमको 50 ml के मार्क करने हैं. मीन्स 50 ml हमको ये सब लेने हैं. What will happen if these liquids are split on the floor? Then next, what will happen if these liquids are split on the floor? अगर ये लिक्विड को फ्लोर के ऊपर गिरा दी जाएगी तो क्या होगा? Then measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. So different शेप के कंटेनर को अंदर उसको वन बाय वन डालना है. Does the volume remain the same? क्या उसका वॉल्यूम सेम रहेगा? Does the shape of the liquid remain the same? क्या उसका शेप सेम रहेगा? So फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Does the volume remain the same? तो यस, उसका वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होएगी. बट Does the shape of the liquid remain the same? तो नो, द शेप ऑफ द लिक्विड नॉट रिमेन्स द सेम, वह सेम नहीं रहेगा. सो व्हेन यू pour the liquid from one container into another, does it flow easily? When you pour the liquid from one container to another, तो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जब लिक्विड को हम डालते हैं, डज इट फ्लो ईजिली? क्या ईजिली फ्लो करता है? तो यस, इट कैन फ्लो ईजिली. सो इससे एक्टिविटी से हम पता लगा सकते हैं कि लिक्विड फ्लो ईजिली एंड इट ऑल्सो टेक शेप ऑफ एनी ऑफ द कंटेनर. जो भी कंटेनर में उसको भरने में आए ऐसा ही शेप उसका हो जाता है. सो वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम. सो ये एक्टिविटी से हमको पता चला कि लिक्विड हैव नो शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. They take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow and change shape, so they are not rigid but can be called fluid. तो हम कह सकते हैं liquids flow and change shape, so they are not rigid, मतलब वो सख्त नहीं है, but can be called fluid. उसको सख्त नहीं कहा जा सकता है. Refer to activity 1.4 and 1.5 where we show that solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water, and these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. So 1.4 और 1.5 एक्टिविटी में हमने देखा था कि सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड. तो सॉलिड भी और लिक्विड भी लिक्विड्स के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं. एंड अनदर थिंग, द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर. तो एटमोसफियर के गैसेज जो है लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are also essential for the survival of aquatic and plants. So aquatic animals और plants के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन उसकी भी ज़रूरत होती है, तो वह भी वाटर के अंदर डिफ्यूज होते हैं. So all living creatures need to breathe for survival, and the aquatic animals can breathe underwater due to the presence of dissolved oxygen in water. Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquid. तो सॉलिड पार्टिकल्स भी हो लाइक अ शुगर, लाइक अ सॉल्ट. लिक्विड पार्टिकल हो लाइक अ मिल्क, लाइक अ बटर मिल्क. एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, दे ऑल कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स. मीन्स लिक्विड के अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस तीनों स्टेट्स के पार्टिकल्स जो होते हैं डिफ्यूज हो सकते हैं. सो द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड. The rate of diffusion of the liquid higher than that of solid. Solid से liquid का जो rate होता है diffusion का वो higher होता है. This is due to the fact that in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. So solid state से ज़्यादा liquid state के particle थोड़े freely होते हैं and they have space between each other. और उसकी वजह से liquid जो है, तो यहाँ last line जो हमारी लिखी हुई थी, लिक्विड्स इज हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड. लिक्विड का जो रेट होता है डिफ्यूजन का वो हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है. नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द गैसी स्टेट. हैव यू एवर ऑब्जर्व बलून सेलर फिलिंग लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस. क्या कभी आपने देखा है
balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas। तो छोटे ही सिलेंडर से, छोटे ही गैस के सिलेंडर से ढेर सारे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स बलून फिल करता है। तो आपने देखा होगा इतने ही सिलेंडर से इतने सारे बलून फिल हो रहे हैं। सो इंक्वायर फ्रॉम हिम, उससे इंक्वायरी करना है, हाउ मनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर, एक सिलेंडर से वो कितने बलून फिल कर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कौन सा गैस यूज़ करता है वो भी हमको पूछना है, अगर कोई सिलेंडर हमारे आसपास में या कहीं पे भी हमको दिखने को मिले तो। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर लर्निंग एक्टिविटी 1.11। सो इन दिस एक्टिविटी take 300 ml syringe and close the nozzle by rubber cock as shown in figure 1.4। We must take 300 ml syringe and close the nozzles by rubber cock as shown in figure 1.4। So you can see here figure। So ऐसे 3 सिलेंडर आपको लेने हैं, which you can see here। So 3 लेने हैं ऐसे हमको, ऐसी 3 सिरिंज लेनी है एंड क्लोज द नोजल बाय रबर कॉक्स, और आगे की जो नोजल है रबर कॉक से बंद करनी है। ये मैंने आपको एनिमेशन वीडियो में एक्टिविटी भेजी थी, शायद आपने देखा होगा। नाउ रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन सेकंड एंड पीसीस ऑफ चॉक इन थर्ड। तो एक के अंदर हमको डालना है विदाउट टच, कुछ नहीं करना है अंदर, सेकंड के अंदर वाटर डालना है एंड थर्ड के अंदर पीसीस ऑफ चॉक, थर्ड में चॉक के पीस डालने हैं। नाउ इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, पीछे से सिरिंज लगानी है, पिस्टन लगाना है सॉरी, एंड यू में अप्लाई सम वैसेलिन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर द स्मूथ मूवमेंट। उसकी स्मूथ मूवमेंट के लिए पिस्टन के साथ में वैसेलिन भी हम लगा सकते हैं। सो ऐसे 3 सिरिंज के अंदर, एक के अंदर कुछ नहीं है मीन्स गैस है, एक के अंदर लिक्विड है और एक के अंदर सॉलिड है। तो कौन सा पिस्टन ईजिली मूव कर पाएगा? तो गैसेस का पिस्टन जो होगा वो ईजिली मूव कर पाएगा, लिक्विड का उससे थोड़ा कम एंड सॉलिड का उसके भी थोड़ा कम। एंड इसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको एनिमेशन वीडियो भेजा था। सो आई होप यू हैव लर्नड अबाउट दिस एक्टिविटी। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस फॉर द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू इन परफॉर्म योर ऑब्जर्वेशन। तो आपके ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चला? सो वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सो वी हैव ऑब्जर्व दैट, तो हमने इससे ऑब्जर्व किया कि गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा गैसेज कंप्रेसिबल होते हैं। सो द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। सो जो गैस जो होता है, जो हमारे घरों में जो रसोई के लिए यूज़ होता है LPG, जो रेड कलर की बोतल में होता है सिलेंडर में, सो उसके अंदर भी क्या होता है? तो लिसन इट, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। तो कंप्रेस्ड गैस होते हैं, उसको बराबर प्रेशर के साथ भरा हुआ होता है। सो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स as it is CNG is also compressed natural gas which is used as fuel these days in vehicle. Due to its high compressibility, large volumes of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. So due to its high compressibility, उसको हाई कंप्रेसिबिलिटी हम भर सकते हैं, जिसकी वजह से लार्ज वॉल्यूम्स में यह गैस बॉटल के अंदर आ सकता है एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। उसको ट्रांसपोर्ट भी इजीली करा जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। नाउ वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस अस नॉस्ट्रिल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? उसके अलावा हमको क्वेश्चन होगा, वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। किचन के अंदर गए बिना हमको पता चल जाता है कि क्या खाना बनाया हुआ है। वाई दिस? बिकॉज द स्मेल दैट रीचेस अस नॉस्ट्रिल, हमारे नॉस्ट्रिल तक ये स्मेल पहुंचती है। सो इसके बारे में समझिए। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा, अरोमा मीन्स उसकी स्मेल जो होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड की अरोमा मतलब उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो सुवास होती है। इट मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन, किचन से स्प्रेड होते हैं
रीच अस एंड इवन फार्दर अवे, वो हमारे तक पहुँचते हैं और दूर तक पहुँचते हैं। एंड द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रिचेस अस इन सेकंड, द स्मेल ऑफ हॉट कुकड फूड रिचेस अस इन सेकंड, हमारे तक ये जो स्मेल होती है सेकंडों में पहुँचती है बिकॉज ऑफ गैसेस। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases. So gases are diffusing in other gases. तो gases means like smell, जो अरोमा होती है वो gases के अंदर डिफ्यूज हो जाती है और gases कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से we can easily smell anything which are made in kitchen. So in the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. गैसी स्टेट में क्या होता है? द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड, हाई स्पीड से उससे पार्टिकल मूव करते रहते हैं। एंड ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हीट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो यह पैराग्राफ में क्या है? तो लिसन इट। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, मतलब गैसेस पार्टिकल्स की कोई फिक्स मूवमेंट नहीं होती है, रैंडम मूवमेंट होती है। सो द पार्टिकल्स हीट ईच अदर, पार्टिकल्स एक दूसरे को टकराते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कोई भी कंटेनर की वॉल को भी टकराते हैं। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज, और उसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उसके कंटेनर की वॉल के ऊपर यह प्रेशर करने की वजह से। सो हियर यू कैन सी थ्री थिंग्स। First one, solid. You can see particles are closer, very closer in a solid. Liquid में उससे कम closer है, जबकि gaseous form में आप देख सकते हो, you can see the particles are far away from each other. So solid में कैसा स्ट्रक्चर होता है आप समझ सकते हो, particles are close each other. B में liquid में